Because the current trend today in the world is to avoid motherhood, to skirt that role, or to escape that role. In fact, another reason for me to take up this topic is that I wouldn't say that I'm a senior psychiatrist or marriage counselor. I would rather say that I'm a co-traveler in the life of thousands of people through their ups and downs in their life. And one thing which is giving me the maximum pain is when I hear from women who are 65, 69, and uh, different age, and they, with the tears flowing down their eyes unstoppably, they have said कि हमने जब गलती की तो हमें उस समय किसी ने बताया क्यों नहीं, हमने जब गलत डिसीजन लिया शादी तोड़ने का, शादी नहीं करने का, डाइवोर्स ले लेने का, बच्चा नहीं करने का, तो उस समय हमें किसी ने बताया क्यों नहीं, हम जब ये गलती कर रहे थे तो हमें कोई आप जैसा सिखाने वाला क्यों नहीं मिला. I learned from them because they took wrong decisions at a time when they could not have their own wisdom, they couldn't have their own experience, and they decided to call up the marriage or not to get married. And some of them, having been failed in their relationship, either premarital or postmarital, they took a vow never to get married. एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली तो क्या है. Some of them they decided to remain whatever you call them, sadhvi and monk and maiden, जिंदगी निकल जाए कैसे. दुनिया में बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करने को तैयार हैं at a price of course. But then many women, and I have known personally, I have seen their votes, I have seen their voting, who were 69, 65, 59, 51. And many of them, they have said they are living alone for last 35 years. People who have given them advices, their father, mother, brother, sister, they all have either left the world or have shifted far away from their loneliness. And these are the women who are intelligent otherwise, who are educated otherwise, who are decent otherwise, who are smart. But they were misguided by people around. That you can live without marriage, you can live without motherhood. You're earning, you can live alone in this world. Today's world is different. Today's world, you can carry on being an earning member. So this program has got a different relevance today. Because world over, this notion is going around that why motherhood? Why can't we live on our own? Why can't we live single? We are no less. We are earning. We can leave the house. We can leave the husband. They do not realize what would happen 6 months from now, 1 year from now, 2 years from now. Even if they have children, even then the whole world becomes different once you leave the house, once you leave the husband, once you decide to be on your own. And when they don't have children, then greater difficulty, because the whole world look at you with different eyes. And not only from the point of view of the man-woman physical kind of thing, much beyond, but the whole world comes to know that you could not manage your relationship. You could not manage your multiple roles. Agreed. Women are supposed to play a role of mother as well as wife, as well as daughter-in-law, as well as whatever profession she is doing. But the remarkable capacity which God has endowed to a woman, only not that much to a man, is multiple multitasking great role. Whatever little I came to know about all three women, they all have their in-laws, they all have busy husband, they all have a very busy career, they have their demanding kids, they have been looking after their house very well. Whatever little sources, whatever little I could inquire about it, that's why I requested each one of them to be on the board and to come in the program and share their experiences. I have genuinely, I'm not giving any political speech, I'm not in UP election. I have genuinely great respect for the mother and great respect for the women for one single role, that they are mother. हम सब ने हिंदी में बचपन में सुना है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए. So if we have to choose between God and mother, God we haven't seen, mother we see. The closest somebody come to our life is in the form
closest God come to our life and touch our life. Incognito, if that word can be used, बिना बताए हुए कि मैं भगवान हूँ, तो माँ के रूप में है। लेकिन हम लोग शायद उस समय इतने बुद्धू होते हैं, इतने अनाड़ी होते हैं कि हमें समझ नहीं होती, हम झगड़ा भी करते हैं, हम रोकते भी हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है, बच्चे हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में माँ जो आती है वो भगवान के रूप में आती है, और आती है और आती है और आती है और जाती नहीं है, रहती है। हम सब शायद जिंदगी में किसी और को भूल जाएंगे, शायद हमारे मन में फादर की इमेजेज या मेमोरी थोड़ी सी डाइल्यूट हो सकती हैं कभी, लेकिन माँ की कभी नहीं। फिलहाल आप और हम जिस उम्र में हैं, और जो हम लोग 8-10 साल के थे, तो हमें याद है कि जिस शहर से हम बिलोंग करते हैं वहां उस समय एक पिक्चर आई थी। काफी लोग उस पिक्चर का नाम भूल भी चुके होंगे, और तीनों यंग महिलाएं जो 30 में हैं मेरे सामने, इन्होंने तो शायद सुना भी नहीं होगा। उस पिक्चर का नाम ही था माँ। तो पिक्चर आई थी समय 62 या 61 में आई थी। उस पिक्चर में एक बहुत बढ़िया गाना था, और मुझे वो गाना उस 61-62 की पिक्चर से लेकर अब तक, यानी तकरीबन 60 साल, वो गाने ने मेरा मस्तिष्क पटल, मेरा मानस पटल छोड़ा नहीं है। उस गाने का मुखड़ा ये था कि उसको नहीं देखा हमने कभी, और उसकी जरूरत क्या होगी, ये माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। शायद धुन आपको याद आ जाएगा सर, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी, हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। ये गाना मुझे उस समय भी बहुत पसंद था। डॉक्टर आनंद, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा इसमें, कि इस गाने ने उस वक्त की बिना का आता था, जो बिना का गीत माला, उसमें ये नंबर 1 रहता था, रहा है पूरे उसमें जी। वेरी गुड। तो मैं इस बात की भी तारीफ करूंगा कि उस समय के गीतकार मधु सुल्तानपुरी या उनकी तरह के और लोग थे, इतनी भाव उसमें पैक करते थे। वो गाना 60 साल पहले लिखा हुआ था, लेकिन आज हम बोल रहे हैं तो हमारे दिल में माँ की यादें ताजा हो रही है, या आज हम सब लोग सुन रहे हैं तो हमारे यादें ताजा हो रही हैं। मेरे एक मित्र ने पूछा कि भाई आप ये टॉपिक रख रहे हैं मदरहुड क्यों, फादरहुड के ऊपर क्यों नहीं रख रहे, पेरेंटहुड के ऊपर क्यों नहीं रख रहे? तो उसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। हालांकि फादर का बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण रोल है, मगर वो रोल कभी माँ के रोल के बराबर नहीं हो सकता। वो रोल माँ के रोल से आगे नहीं जा सकता। फादर मेहनत करते हैं, कमाते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन जो संस्कार, जो गुण, जो भावनाएं माँ पैक करती है बच्चों में, वो दुर्लभ है। हिंदी का शब्द दुर्लभ है, रेयर है, क्योंकि वो पावर या वो प्रिविलेज फादर को नहीं मिलता। मैं इसी साथ में दूसरा सेंटेंस कहना चाहूंगा, व्हाई मदरहुड इज अ ग्रेट ब्लेसिंग और अ ग्रेट गिफ्ट। दुनिया में किसी दूसरे इंसान को अपने सर्वस्व को किसी दूसरे आदमी को संपूर्ण रूप में अनकंडीशनली देने का मौका किसी और रोल में नहीं आ सकता सिवाय मदरहुड के। आप किसी बॉयफ्रेंड को, किसी फियांसी को, किसी हस्बैंड को कितना भी प्यार कर लें और कितना भी इच्छा रख लें कि मैं अपना सब कुछ उड़ेल दूंगी इसको प्यार करने में, मगर कंडीशंस आएंगी, बीच बहुत सारे बैरियर्स आएंगे। आप अनकंडीशनली, अनकैलकुलेटिव, बिना किसी बैरियर के नहीं दे पाएंगे, और सामने वाला रिसीव नहीं कर पाएगा। और यही सारी महिलाओं की दुविधा होती है कि जितना प्यार वो देना चाहती हैं, जिसको वो समझती हैं कि लेना चाहिए, वो उनकी जिंदगी में हमेशा नहीं रहता या उस तरह नहीं रहता जितना कि जिस तरह वो देना चाहती है। मगर मदरहुड गिव दैट प्लेटफॉर्म, गिव दैट अपॉर्चुनिटी। वो जो कुछ बच्चे को देना चाहती हैं वो दे सकती हैं। हम उस जनरेशन से आए हैं मिस्टर गोयल और मैं, जहां आमतौर पर 4-5-6 बच्चे होना सामान्य बात होती है। जो आज की डेट की बहुत सारी महिलाएं बोलेंगी, ओ माय गॉड 6 बच्चे, 5 बच्चे, मगर हमें ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है, और बल्कि हम गर्व से कहते हैं कि भले ही हमारे ऊपर कितने बड़े भाई बहन थे, मगर हमारे माता पिता के पास, और खासतौर पर इसमें विशेष तौर पर माँ का जिक्र हो रहा है, उनके पास उनके प्यार के खजाने में कोई कमी नहीं हुई थी। उन्होंने हमें भी उतना ही प्यार दिया। हमें कभी महसूस नहीं हो कि हमें प्यार कम मिला, क्योंकि वो माँ थी। और मैं इस चीज को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, माँ बनते ही, नेहा भी सुन रही हैं,
विभा भी सुन रही हैं, मनीषा भी सुन रही हैं, माँ बनते ही आपकी एक हॉटलाइन एक डिवाइन पावर से, गॉड से, भगवान से जुड़ जाती है और वहां से सप्लाई होती है। वहां से सप्लाई होती है आपके अंदर सारे गुणों की, आपके अंदर सारी शांति की, आपके अंदर सारे सुख की, आपके अंदर सारे संस्कार की। आपका अच्छा माँ होना उस भगवान के आशीर्वाद को अपने थ्रू फ्लो करने देंगे। हमें से काफी लोग हैं जिनकी मदर नहीं है। ये तीनों महिलाएं तो तीनों सामने बैठी हैं, इन तीनों की मदर है, एक खुशकिस्मत है। हम भी थोड़े से कम है, हमारी माँ दुनिया में नहीं है, दूसरों के लिए नहीं है, मगर हमारे दिल में है। और शायद मेरा कहना है अनुचित नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि बच्चों के लिए उनकी माँ कभी नहीं मरती, दूसरों के लिए दुनिया में मर जाती है, फोटो में आ जाती है, हाथ चढ़ा दिया जाता है, लेकिन बच्चों के लिए वो फोटो फ्रेम में नहीं, वो दिल में हमेशा रहती है। और ये एक स्पेशल प्रिविलेज है मदरहुड, क्योंकि आम लड़की कितने दिन जिएगी, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, अगर वो माँ नहीं बनी है तो। लेकिन अगर उसको गिफ्ट मिली है मदरहुड की, तो वो जितने साल उसके बच्चे जिएंगे उनके अंदर, उनकी संस्कार में, उनकी भावनाओं में जिएगी। अगर आज हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, कोई भी प्रोग्राम देते हैं, कोई भी टॉक देते हैं, तो शायद जाने में अनजाने में हमारा माँ का जिक्र आ ही जाता है। एक बात काफी लोगों ने ऑडियंस ने, दर्शकों ने, जहां जहां गए हैं उन्होंने महसूस की है। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई पॉलिटिकल लीडर हों कि हम किसी हाई कमांड का नाम मेंशन करते हों कि ये फलाना जिंदाबाद। हम तो उनको जिक्र करते हैं जिनकी वजह से हम हैं, और हम हैं, ये हमारा होना ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ भी है, बोलने को, ज्ञान को बताने को, डिस्कस करने को, दिखने को, शरीर को, कॉम्प्लेक्शन को, जो कुछ भी है वो हमारा माँ का ही प्रतिबिंब है, उन्हीं की इमेज है। जैसे कि अध्यात्म में माना जाता है कि हम सब गॉड की इमेज हैं और उन्होंने अपनी इमेज में ही हमको बनाया है। ये तो बात हम सब ने बहुत सारी किताबों में पढ़ी है, मगर हम ये क्यों नहीं मानने को तैयार होते कि हमारी माँ की इमेज हम हैं। तो आप तीनों महिलाएं शायद आज की बात रुक कर सोचेंगे। जब आपकी आवाज शायद कभी कभी गुस्से में तेज हो जाती है, तो आपका बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मम्मी इतना चिल्ला रही हैं, मम्मी इतना झगड़ा कर रही हैं, मम्मी की आवाज तेज क्यों हो गई, तो बच्चा सहम जाता है। हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे, क्योंकि मदरहुड इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। जैसा मैंने उस गाने के उसे बताया कि हमने भगवान को नहीं देखा, मतलब उसकी जरूरत क्या हो। ये माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या हो, क्योंकि वो भगवान जिसको हम डिवाइन मानते हैं, वो भगवान जिसको सर्वगुण संपन्न मानते हैं, वो भगवान जिसमें ऑल क्वालिटीज होती हैं, उसको हमने नहीं देखा, मगर हम माँ को देख रहे हैं। और उसमें हम कोई भी गुणों का अभाव हमारी उसको बर्दाश्त नहीं होता, हमारी कॉन्शियस को, इसलिए बच्चे सहम जाते हैं। अब जैसे मैं आपको अपनी पर्सनल बुक से मैं बताऊं, लाल साहब 2 मिनट और बोलने की इजाजत है? हाँ प्लीज प्लीज गो अहेड। जी हाँ जी, मैं आपको एक बार बताऊं कि मैंने अपने बचपन में कभी अपनी माँ को गुस्सा करते नहीं देखा। मैंने अपनी माँ को कभी तेज आवाज में नहीं देखा। इसलिए मुझे उन महिलाओं के प्रति जो कभी कभी चिल्ला के बोलती हैं, तेज आवाज बोलती हैं, मैं खुद थोड़ा सहम जाता हूँ उस बच्चे की तरह, या मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ कि शायद मैं इनके लायक नहीं, क्योंकि मेरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्त्री की, माँ की इमेज है कि वो हमेशा सौम्यता से बोलेगी, धीरे से बोलेगी, प्यार से बोलेगी, समझा के बोलेगी। वो अगर हस्बैंड पर भी गुस्सा होगी या इन-लॉज पर भी गुस्सा होगी, तो भी उसके आवाज की टोन नहीं बदलेगी, उसके अंदर कर्कशता नहीं आई, क्योंकि कर्कशता आते ही वो मदरहुड से दूर हो जाएगी। तो मैं उस चीज को अभी तक लिए बैठा हूँ 60 साल के बाद भी। मेरी उम्र 68 है, हमारी माँ को गए हुए भी तकरीबन 34 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे मन में वो इंप्रेशन जो हमने बचपन में माँ के साथ गुजारे थे वो अभी तक है कि स्त्री जो है वो उन सारे गुणों का साक्षात प्रतिबिंब है जो हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान में हो सकते हैं। शांति, सौम्यता, स्नेह, जितनी उन सारे गुणों की पराकाष्ठा हो सकती है, पीक हो सकती है, पिनाकल हो सकता है, वो सारे स्त्रियों में है। स्त्री के सौंदर्य को हमेशा सिर्फ उसके शरीर से वर्णन किया गया है, क्योंकि उन लोगों के द्वारा जिनकी दृष्टि, जिनकी सोच बहुत ऊंची और छोटी थी, उन्होंने स्त्री को सिर्फ शरीर में देखा है, शरीर की विशेषताओं में देखा है, और वो लगभग 10% भी नहीं है। इसलिए बहुत सारी लड़कियां उस 10% पर रुक जाती हैं कि मैं मॉडल हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं कंपनी में CEO हूँ,
या मैं गुड लुकिंग हूँ, या मेरे 10 एडमायरर हैं। आप जिंदगी में 10% पर ही रुक गए हैं। आपका 90% जो पोटेंशियल है ग्रो करने का, इवॉल्व करने का, अपने आप को कहीं ऊपर तक ले जाने का, वो तो आपका ब्लॉक है। अगर आपके घर में 10 कमरे हों और आप एक कमरे में ही रहें और 9 कमरों में ताला लगा रहे, तो आपको क्या कहा जाएगा? 10 कमरे का आपका बंगलो हो और आप एक ही कमरे में रहते हो चौल की तरह, तो आपको क्या कहा जाएगा? तो बहुत सारी महिलाएं हैं नए जमाने की, मॉडर्न हैं, वेल थिंकिंग हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छी तरह कमाती भी हैं, काफी आर्गुमेंट भी कर सकती हैं। आर्गुमेंट में शायद मुझको हराना भी चाहेंगी वो, ये क्या बात है, आप तो दकियानुसी हैं, आपकी बात सफेद है, आप तो उलमैन है, ये सब पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारा हक है इंडिपेंडेंट होने का। हम माँ बने या ना बने, हम ऐसे बने कि वैसे बने। जैसे आजकल हिजाब पर ही कंट्रोवर्सी हो रही है, हमारा हक है, तो अब लड़कियां कहने लगी हमारा हक है, हमको आपकी बात नहीं सुननी, कि हमको हमारी जिंदगी कैसे जीनी है, हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं। मुझे भी किसी को सिखाने की, जबरदस्ती करने का कुछ नहीं। हाँ, ये बात इस तरह के डिस्कशन में निकल कर आती है कि आप पूरी जिंदगी 10%, 15%, 20% पट के रह जाएंगे। आपके बंगलों के 10 रूम में से सिर्फ 1 या 2 रूम खुला रहेगा, बाकी 8 रूम में ताला रहेगा, बंद रहेंगे, उसमें मकड़ी और कॉकरोच आएंगे। आप समझ सकते हैं, बहुत सारी लड़कियों को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, झगड़ा करने का मन करता है, हमेशा बेचैन रहती हैं। वो सारी बातें का जुड़ाव इस बात से है कि वो अपनी पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ में कितनी अनफुलफिल है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी माँ भी अनफुलफिल थी या उनकी पेरेंट्स की लाइफ अनफुलफिल थी, तो उन्होंने वो ही देखा है। चलो, हमारे माँ बाप की अपनी किस्मत थी, अपनी जिंदगी थी, वो कैसे थे कैसे नहीं थे उसको वहां पीछे छोड़ दें। हमें एक अवसर मिला है कि अगर हम वैवाहिक जीवन में हैं और अगर हम माँ हैं, तो ये हमारे पर्सनल एवोल्यूशन के लिए, हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैंने टॉपिक का सोचा कि भाई मैंने लाल साहब को प्रस्ताव किया कि भाई मदरहुड इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। वो गिफ्ट आदमी को नहीं मिलती। मेरे पर्सनल एवोल्यूशन के लिए मैं सिर्फ कमा सकता हूँ, मैं सिर्फ 12 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे इंसान को पैदा नहीं कर सकता। क्रिएटर वाला रोल जो है वो सिर्फ भगवान के पास था, क्रिएटर का रोल। और भगवान तो हर जगह स्वयं आ नहीं सकता, तो भगवान ने स्त्री बनाई। स्त्री के अंदर गर्भ धारण की क्षमता थी। भगवान ने अपने बाद नेक्स्ट क्रिएटर स्त्री को बनाया। इसलिए स्त्रियां उतनी समान नहीं है, उतनी एडोरेबल हैं, उतनी रेस्पेक्टफुल हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट क्रिएटर है आफ्टर द गॉड। आदमी क्रिएटर नहीं है, आदमी सिर्फ पैसा कमा सकता है, नाम कमा सकता है, लेकिन दूसरा इंसान नहीं बना सकता। इसलिए जो तीनों लोग के विचार सुनने को मैं बहुत उत्सुक हूँ। और जो हमारे बाकी दर्शकगण जिन जिन प्रांतों में हैं, लाल साहब का एक प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है, सुना है 20-25 लाख व्यूअर देखते हैं कंट्री के 7 स्टेट्स में और दूसरे देशों में भी। उन सबको ये संदेश जाना चाहिए, उन सारी लड़कियों को जो मदर हैं या होने वाली हैं, आप बहुत लकी हैं, आप सबको मुबारक।